के लिए ये मंच स्वागत विधि આપણે કરીશું ગુજરાતના સપૂત દેશનું ગૌરવ હિન્દુસ્તાનને જેમને વૈશ્વિક નવી ઓળખ આપવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે દેશમાં સુશાસન દ્રઢ વિશ્વાસ સાથે પ્રસ્થાપિત થઈ રહ્યો છે એવા આપણા લોક લાડીલા અને દેશના વડાપ્રધાન आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वागत प्रदेश अध्यक्ष श्री आरसी फड़नू जी અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ દ્વારા થશે ભારત માતા કે ભારત માતા કે आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष આપણું ગૌરવ માનનીય અમિતભાઈ શાહનું સ્વાગત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી આરસી ફળદુ અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ દ્વારા કરાશે ભારત માતા કે ભારત માતા કે હું વિનંતી કરીશ राज्यना प्रभारी श्री ओमजी माथुर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रूपाला जी आदरणीय सुरेंद्र काका माननीय मनसुख भाई वसावा અને આદરણીય સતીશ जी એ પ્રધાનમંત્રી જી નું સ્વાગત કરશે ભારત માતા કે गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ना उपाध्यक्ष श्रीओ एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी नो हार्दिक स्वागत करसे गुजरात भारतीय जनता पार्टी ना બધા કાર્યકર્તાઓથી શહેરના મેયર કર્ણાવતી મહાનગરના અધ્યક્ષ અને બંને સાંસદ પરેશભાઈ રાવલ અને मंच पर विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आरसी फड़नू जी, राज्यना मुख्यमंत्री आदरणीय आनंदीबेन, श्री ओमजी माथुर, श्री रूपाला जी, श्री वी सतीश जी, केंद्र में मंत्रिमंडल मारा साथी श्री मनसुख भाई और विशाल संख्या में आवेला वाला भाईओ और बहनों, घना लांबा समय पछी आजे आप सौनी वच्चे आवानो सद्भाग्य मळ्युं छे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
આપે જે સ્વાગત સન્માન કર્યું એ બદલ હું રાજ્ય ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અને ગુજરાતના નાગરિકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. જાહેર જીવનમાં સ્વાગત એ લગભગ રોજિંદી પ્રક્રિયા હોય છે. ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ કાર્યક્રમો હોય, ક્યાંક જવાનું થતું હોય, પરંતુ કેટલાક સ્વાગતો હૃદયને સ્પર્શી જતા હોય છે. આપણા દેશના સૈન્યના એક વડા હતા જનરલ કરિયપ્પા. એકવાર એમના વતનમાં એમના સન્માનનો કાર્યક્રમ હતો અને એમાં એમણે એક ભાષણ કર્યું હતું. એમણે કહ્યું કે હું સેનાના વડા તરીકે દુનિયાના અનેક દેશોમાં જાઉં, ત્યાંની સેનાના સલામી ઝીલતો હોઉં, સેનાની ડિસિપ્લિનના કારણે ડગલે ને પગલે માન, સન્માન, મર્તબો, પ્રોટોકોલ જળવાતા હોય, એનો આનંદ મેં અજકેરો અનુભવ્યો. એમ આજે મારે મન પણ જે ધરતીએ મને મોટો કર્યો, જે સાથીઓ સાથે ખભે ખભા મિલાવીને દિવસ રાત કામ કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું, કોઈના સ્કૂટર પર પ્રવાસ કરવાનો અવસર મળ્યો હશે, કોઈની ગાડીમાં બેસીને એક ગામથી બીજે ગામ જવાનો મોકો મળ્યો હશે, એવા અનેક પુરાતન સાથીઓ એમના દ્વારા જ્યારે સન્માન થાય ત્યારે સન્માન હૃદયને સ્પર્શી જતું હોય છે. હું આપના પ્રેમ, આપની લાગણીને મારે માટે એક અમૂલ્ય મૂડી તરીકે જોઉં. પ્રજાનો આ પ્રેમ જ, કાર્યકર્તાનો આ સાથ સથવારો એ જ કામ કરવાની નવી શક્તિ આપતો હોય છે, નવી પ્રેરણા આપતો હોય છે. ગુજરાતનો 14 વર્ષનો અનુભવ, આપ સૌ સાથીઓ પાસેથી કરેલું કામ, એના કારણે શીખેલી બાબતો, સંગઠનમાંથી જે પ્રાપ્ત કર્યું એ બધી બાબતો આજે દિલ્હીમાં મને સરકાર ચલાવવામાં ખૂબ મદદરૂપ થાય છે. એ અનુભવ મને લેખે લાગ્યો છે. નહીં તો એક નાનકડા રાજ્યનો મુખ્યમંત્રી અચાનક આટલો મોટો કારોબાર એની માથે આવે, સામાન્ય માણસ તો ગાંગો થઈ જાય. આપણે કહીએ ને ગાંગો થઈ જાય. પરંતુ મારી ટ્રેનિંગ જ એવી થઈ, અહીંયા મારું ઘડતર જ એવું થયું કે નવી પરિસ્થિતિ, નવું કામ, નવું વાતાવરણ એને પણ એટલી જ સહજતાથી હું આત્મસાત કરી શક્યો અને ખૂબ ટૂંકા ગાળામાં દેશની મૂળભૂત બાબતો, હિન્દુસ્તાનના જુદા જુદા ખૂણામાં રહેતા લોકોની પરિસ્થિતિ, રાજ્યો નાના હોય કે મોટા હોય,
એમની અગવડ સગવડ એ બધાને સમજીને દેશને આગળ ખપાવવા માટેનો જે પ્રામાણિક પ્રયાસ કર્યો છે એના માટે મને અતિશય સંતોષ છે. અને જે રીતે હવે હું આવનારા દિવસોના મારા કામને જોઈ રહ્યો છું એમાં મને સ્પષ્ટ લાગે છે ખૂબ તેજ ગતિથી ખૂબ આત્મવિશ્વાસ પૂર્વક 125 કરોડ દેશવાસીઓ એક બનીને નેક બનીને ભારતનું ભાગ્ય બદલવામાં કોઈ કચાશ નહીં રાખે મારો પૂરો વિશ્વાસ. દેશ પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓને પાર કરશે. આજે મારા આવવાનું એક કારણ તો એ પણ બન્યું કે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. એક શુભ શરૂઆત છે. દુનિયાના દેશોમાંથી આવતા વડાઓ ભારતના નાના નાના રાજ્યોને પણ જુએ, નાના નાના શહેરોની પણ મુલાકાત લે. માત્ર દિલ્હી જોવાથી સમગ્ર હિન્દુસ્તાનનો અંદાજ આવવો મુશ્કેલ હોય છે. આ દેશ વિવિધતાઓથી ભરેલો છે અને એ અર્થમાં ચીનના રાષ્ટ્રપતિની ગુજરાતની મુલાકાત અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આવનારા દિવસમાં ગુજરાત પણ વિકાસની નવી ઊંચાઈઓને પાર કરશે. એની પ્રગતિની યાત્રા ઉત્તરોત્તર ગતિ વધશે, વ્યાપ વધશે. સામાન્ય માનવીના જીવનમાં એના આશા આકાંક્ષાઓની પૂર્તિ થાય એવી ઉત્તમમાં ઉત્તમ વ્યવસ્થાઓ વિકસતી જશે એનો મને પૂરો ભરોસો છે, પૂરો વિશ્વાસ છે. આપણે સૌ સાથે મળીને રાષ્ટ્રના કલ્યાણની અંદર યોગદાન આપવા પાછી પાની કરીએ નહીં. ખૂબ તેજ ગતિથી ગુજરાતનો પણ વિકાસ થાય. શરૂઆતમાં વરસાદ સંતા કુકડી રમતો હતો પણ પછી મન મૂકીને વરસી ગયો. અને એનો લાભ દેશના કૃષિ જગતને, દેશના ગ્રામીણ જીવનને જરૂર મળવાનો છે. મિત્રો, ફરી એકવાર આપ સૌએ સ્વાગત કર્યું, સન્માન કર્યું. હું આપનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. 2 દિવસ આપની વચ્ચે છું. ગુજરાતની આબોહવાની નવી તાજગી દિલ્હીમાં પાછા જઈને વધુ નવું કામ કરવાની તાકાત આપશે એવો મને આ મિટ્ટીમાં ભરોસો છે, એની હવામાં ભરોસો છે. કારણ કે આ મિટ્ટી, આ હવા મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ચરણરથથી પાવન થયેલી ધરતી. મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રેરણા રાષ્ટ્ર માટે વધુ નવું કરવાની તાકાત આપતી હોય છે, પ્રતિપળ પ્રેરણા આપતી હોય છે. એ મહાપુરુષોને નમન કરીને આપ સૌ હૃદયપૂર્વક અભિનંદન કરું છું. ભારત માતા કી જય.
સૌ કાર્યકર્તાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રીનું અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું ભવ્યાતિ ભવ્ય અભિવાદન કરવા માટે બધા જ કાર્યકર્તાઓને અભિનંદન. એક સૂચના, અહીંયાથી જે જવાનો રસ્તો છે એ રસ્તા ઉપર કોઈ બ્લોક નહીં કરે. અહીંયાથી ઝડપથી આપણે સ્થાન છોડીને જેમને પણ ત્રિમંદિર જવું છે જઈ શકશે, પરંતુ વચ્ચેનો અહીંથી સર્કલ સુધીના રસ્તા ઉપર ક્યાંય આપણે એકઠા નહીં થઈએ. સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम बनने के बाद पहुंचे अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि गुजरात का अनुभव उनके काम आ रहा है और 14 साल के अनुभव से उस मामले में सक्षम हुए हैं कि वो दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार अहमदाबाद पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। स्वागत के लिए उन्होंने पूरी गुजरात की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गुजरात का अनुभव दिल्ली में उनके काम आ रहा है। हम आपको बता दें कि कल ही चीनी राष्ट्रपति का दौरा है, भारत का दौरा है। अहमदाबाद सबसे पहले वो पहुंचेंगे, जहां नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे। बाकायदा गुजरात की संस्कृति से उनको अवगत कराया जाएगा और उसके बाद दिल्ली दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। तो पीएम बनने के बाद पहली बार अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। स्वागत के लिए उन्होंने गुजरात की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गुजरात में जो उन्होंने काम किया, जो 14 साल सेवा यहां पर उन्होंने की है, वो अनुभव उनके काम आ रहा है इस वक्त देश की सरकार चलाने के लिए। कल 17 सितंबर है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही है कि कोई भी उनका जन्मदिन ना मनाए। ट्विटर पर उन्होंने इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मेरे मित्र ना मनाएं, बेहतर होगा कि वो अपना ज़्यादा समय, ज़्यादा अपनी क्षमता जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए समर्पित करें। और कल ही चीनी राष्ट्रपति का भारत दौरा शुरू हो रहा है। सबसे पहले वो अहमदाबाद ही पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए पहले से ही पहुंच गए हैं। साबरमती रिवर फ्रंट पर एक डिनर का भी आयोजन किया गया है, वहीं पर खास मुलाकात भी होगी चीनी राष्ट्रपति के साथ। और पहली बार पहुंचे हैं अहमदाबाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो पहुंचे। उन्होंने जनता ने जहां पर जो स्वागत किया, उसके लिए उन्होंने गुजरात की पूरी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आपको बताएंगे कि क्या क्या कहा नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आज। गुजरात के अनुभवों को उन्होंने गिनाया। उन्होंने कहा कि 14 साल उन्होंने गुजरात में सेवा की है, गुजरात के वो मुख्यमंत्री रहे हैं और वही अनुभव अब सरकार चलाने में, देश की सरकार चलाने में उनके काफ़ी काम आ रहा है। चीन के हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। निर्णय, क्या क्या बातें कहीं, क्योंकि भाषण गुजराती में था, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, आप बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आए हैं अबुल, बहुत छोटा सा उन्होंने भाषण दिया। हालांकि बहुत लंबा नहीं बोले हैं वो, लेकिन बहुत ही भावुक कर देने वाला भाषण था उनका। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बताया कि देखिए, जब पब्लिक लाइफ में आप होते हैं तो स्वागत और सम्मान तो बहुत होते हैं, स्वागत और सम्मान समारोह बहुत होते हैं, हर रोज़ होते हैं आपके जीवन में। लेकिन जब आप अपने घर आते हैं, अपने घर पे जो आपका स्वागत और सम्मान होता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। उन्होंने जनरल के एम करियप्पा का की ज़िंदगी का एक किस्सा बताया कि उन्होंने बताया आर्मी में रहते हुए कई तरह के प्रोटोकॉल्स और उनका पालन करते हुए कई तरह के रिचुअल्स उन्हें फॉलो करने होते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया था, उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब उनके अपने घर में, उनके अपने गांव में उनका स्वागत हुआ। और वही उन्होंने कहा कि उसी तरह की खुशी का अनुभव आज वो यहाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अपने पुराने साथी, जिनके साथ आप काम करके, जिनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आप चले हों, जिनके साथ काम करके आप इस लेवल पे पहुँचे हों, जब वो आपका सम्मान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो हृदय है उसको स्पर्श कर जाता है, वो दिल को छू जाती है वो बात, वो सम्मान। और आज उन्होंने कहा कि वो इसी चीज़ का अनुभव कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जो उनका अनुभव था गुजरात का पिछले 14 सालों का, उससे उन्होंने जो कुछ सीखा, यहाँ जो काम करने वाले लोग थे उनसे जो कुछ सीखा, अपने साथियों के साथ रह करके उनसे जो उन्होंने अनुभव हासिल किए, उसके बेसिस पे आज वो दिल्ली में बखूबी अच्छी तरह काम कर पा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि दिल्ली का जो एक एडवर्स एनवायरनमेंट था, एक अलग तरह का एनवायरनमेंट था, बहुत सारी चीज़ें नई थी उनके जीवन में, उसमें बहुत सहजता से वो एडजस्ट कर पाए। तो कहीं ना कहीं वो
यहाँ के लोगों के साथ एक वो इमोशनल कनेक्ट अपना जो था उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इनफैक्ट जाते जाते ये भी कहा कि आज जब मैं गुजरात आया हूँ तो यहाँ की आबो हवा में दोबारा सांस लेने से एक नई ऊर्जा मिलेगी मुझे, और इससे मैं दिल्ली में जाकर और अच्छा और बेहतर काम कर पाऊँगा। साथ ही मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही कि उनके यहाँ आने की और बहुत वजह है, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि चीन के राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं और वो चाहते थे कि दिल्ली मुंबई के अलावा देश की विविधताओं को दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी देखें। इसलिए जब वो गुजरात आएंगे तो गुजरात के विकास को देखें, गुजरात की सांस्कृतिक विकास को देखें, गुजरात के आर्थिक विकास को देखें, और साथ ही उनके यहाँ आने से उसमें बढ़ोतरी भी हो, उसको फायदा भी पहुँचे। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार अहमदाबाद का उन्होंने दौरा किया है। थोड़ी देर पहले उन्होंने भाषण दिया है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ हैं। निर्णय, बहुत सारे लोग भी आपके साथ हम देख रहे हैं, ये बताइएगा कि यहाँ पर पीएम बनने के बाद वो पहली बार पहुंचे हैं, कैसा अनुभव रहा अहमदाबाद के खासतौर से लोगों का? ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बार बार उन्होंने अपने आप को अहमदाबादी कहा, कई मौके ऐसे आए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए, नरेंद्र मोदी एक तरह से मैं कहूँ ओवरवेल्म्ड लग रहे थे, जो जिस तरह का स्वागत यहाँ पे लोगों ने किया है। और मैं आपको बताऊँ, लोग भी उतने ही रिस्पॉन्सिव से जितने हमेशा उनको देख करके होते हैं। यहाँ बहुत से लोग हैं। आप बताइए, इतने दिनों बाद, महीनों बाद नरेंद्र मोदी जब वापस आए अपने गुजरात में लौट करके प्रधानमंत्री बनने के बाद, कैसा आप लोगों ने अनुभव किया उनको देख करके? उनको देख के हमारे अंदर एक ताजगी और नई ऊर्जा पैदा हुई है। उनको देख के ऐसा लगे घर की माँ हमारे घर में आई हो। माँ के पास बच्चा कैसे दौड़ के पास में आता है, ऐसा लग रहा है कि आज हमारी माँ हमको वापस मिली है। दिन आ गए। मेरा भी यही कहना है कि ये जो मोदी साहब आए, मोदी जी के, मैं खुद ही बीजेपी में ऑडो मनमोहन बूथ का प्रमुख हूँ और मैं मोदी जी के प्रेरणा लेके मैं भाजपा में जोड़ा है। आज 2 साल से पब्लिक की इतनी सेवा करता हूँ कि आज कोई भी ऐसा काम होता है, मैं खुद ही प्रजा के लिए मोदी बन जाता हूँ, मैं खुद ही प्रजा के लिए राह सब बन जाता हूँ। चलिए निर्णय, आप हमारे साथ बने रहें। इसी खबर को अहमदाबाद लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। एक भाषण उन्होंने दिया है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। निर्णय, ये बताइएगा क्या क्या कार्यक्रम है आज के प्रधानमंत्री के? देखिए, अब यहाँ स्वागत उनका जो हुआ, अभिवादन होने के बाद नरेंद्र मोदी अब यहाँ से निकल करके गांधीनगर त्रिमंदिर की तरफ निकले हैं, जहाँ पूरे राज्य से जो भी मंडल कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन सबको इनवाइट किया गया है। करीब 30,000 के आसपास कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे, जिनके साथ नरेंद्र मोदी वार्तालाप करेंगे और उनके साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे। ये दोनों उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी सीधे राजभवन जाएंगे, जहाँ पे उन्हें रुकना है। जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाता है तो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उसे राजभवन में रुकना होता है। और रात में मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन किया है, जहाँ गुजरात के गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। असली जो कार्यक्रम रहेंगे वो कल रहेंगे। कल जब उनका जन्मदिन भी है, सबसे पहले वो अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने जाएंगे और उसके बाद चीनी राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय, आते रहेंगे आपके पास।